جس طرح تنخواہیں روکی جا رہی ہے, جس طرح انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جس طرح ہر استاد جو کہ آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وائس چانسلر کی جانب سے, تو یہ انتہائی غیر منصفانہ ہے. دیکھیں, وائس چانسلر صاحب یونیورسٹی کے لیے فنڈ حاصل نہیں کر پا رہے, وائس چانسلر صاحب یونیورسٹی کو ٹائم نہیں دے رہے, وائس چانسلر صاحب یونیورسٹی کی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے. بحران کو چھپانے کے لیے جب ہم جیسے اساتذہ یا ملازمین اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو اس آوازوں کو سلب کرنے کے لیے, ان آوازوں کو کچلنے کے لیے وائس چانسلر صاحب اپنی پوری انرجی اور اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں. چانسلر آصف علی زرداری کا جامعات کے نظام میں اصل کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کردار کو کتنی حد تک نبھا رہے ہیں؟ بڑا آپ نے مشکل مجھ سے سوال پوچھ لیا ہے, لیکن بہرحال میں اس کا جواب دیتی ہوں. ان کی جو انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں جو بیان کی انہوں نے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے مطلب صدر جو چانسلر بنے ہوئے ہیں, ہی شوڈ ہینگ ہز ہیڈ ان شیم. 2022 اور 21 کے جو سلیکشن بورڈ ہوئے اس میں میرے ڈوزیئر غائب کیے گئے, میری جو رپورٹس آئیں وہ غائب کی گئیں. 2023 میں میرا سلیکشن بورڈ ہوا اور موجودہ انتظامیہ نے میرا سلیکشن بورڈ بھی کینسل کر دیا بغیر کسی جواز کے. میری کتابوں پر صدارتی ایوارڈ ملے, مجھے صدر مشرف نے ایوارڈ دیا, مجھے صدر زرداری نے ایوارڈ دیا, مجھے کئی وزرائے اعظم اور صدور نے ایوارڈ دیے, لیکن میں بہت زیادہ مایوس. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بینش بخش. ناظرین, اس وقت وفاقی اردو یونیورسٹی شدید مالی, انتظامی اور تعلیمی بحران کا شکار ہے, جہاں اساتذہ, طلباء اور ملازمین اپنے مستقبل کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں. تنخواہوں اور پینشن کی عدم ادائیگی, جبری ریٹائرمنٹ اور متنازع تقرریوں کے خلاف آج اساتذہ, وکلاء اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج اور تحفظات سامنے آئے ہیں. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وفاقی اردو یونیورسٹی کا بحران کہاں تک پہنچ چکا ہے اور اس کے اثرات طلباء کے مستقبل اور تعلیم پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. میم, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں چانسلر آصف علی زرداری کا جامعات کے نظام میں اصل کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کردار کو کتنی حد تک نبھا رہے ہیں؟ بڑا آپ نے مشکل مجھ سے سوال پوچھ لیا ہے, لیکن بہرحال میں اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیے, ہونا یہ چاہیے بحیثیت چانسلر اس یونیورسٹی کے تمام تر معاملات کو دیکھنا, سمجھنا اور حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. جیسے کسی گھر میں کسی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ خود اپنی مصروفیات, بہرحال بحیثیت صدر ان کے لیے آسان کام نہیں ہے کہ وہ ہر ایک فورم کے اوپر آئیں اور آ کے ہمارے مسائل کو سنیں یا ہر اس جامعہ کے مسائل کو سنیں جو کہ ان کی چانسلرشپ میں آتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں ڈپٹی چیئر, ایک ہمارے سینٹ کے اندر ایک عہدہ ہے جو کہ پریزیڈنٹ کسی کو بھی بنا سکتا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہی ہمارے پاس لے آئیے تاکہ ہمارے وہ مسائل جو سینٹ کے تھرو حل ہو سکتے ہیں, اور کیونکہ سینٹ کے اجلاس نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ڈپٹی چیئر نہیں ہے, تو وہ یہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چانسلر صاحب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ یہ جامعات, یہ تعلیمی ادارے ہی ہیں جو مختلف سیاستدان بناتے ہیں, مختلف لرنڈ پروفیسرز بناتے ہیں, قوموں کی ترقی میں کام کرتے ہیں. اچھا میم, دیکھتے ہیں کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کچھ عرصوں سے ہی مالی اور تنظیمی بحران کا شکار ہے, تو کیا سمجھتی ہے کہ وفاقی وزارت تعلیم مقبول صدیقی صاحب اس مسئلے کو کتنی حد تک سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ دیکھیے, سنجیدگی سے لینے کا جہاں تک تعلق ہے, تو اب تک ان سے جتنی دفعہ بھی ملاقات ہمارے نمائندوں کی رہی, بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اس بات میں سوچتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن جو ان کا کردار ہونا چاہیے بحیثیت اردو زبان بولنے والے شخص کی حیثیت سے, ایک یونیورسٹی, ایک جامعہ جو بنی ہی اردو کے نام پر ہے, جہاں پہ کہا یہ گیا ایک نظریاتی یونیورسٹی جس کو بنایا گیا ہے, اس نظریاتی یونیورسٹی میں اس زبان کو بولنے والے لوگوں کا جو کردار ہونا چاہیے, اتفاق کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے. اور یہ بتائیے گا کہ کیا HEC جامعات میں اکیڈمک فریڈم اور گورننس بیلنس کو یقینی بنا رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا نام روشن علی سومرو ہے اور میں انجمن اساتذہ عبداللہ کیمپس کا پریزیڈنٹ ہوں. دیکھیں, جہاں تک بات آپ کہہ رہی ہیں فریڈم کی, تو دیکھیں ایک حساب سے اکیڈمک فریڈم جو ہے نا وہ محدود سطح پہ اس وقت یونیورسٹیز میں پایا جاتا ہے, اور یقینی طور پہ دیکھیں سلیبس جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. HEC وقتاً بوقتاً سلیبس اپڈیٹ کرتی رہتی ہے, اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اچھا, کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے کنٹینٹ یونیورسٹی اپنے اینڈ سے اس میں اپڈیٹ بھی کر سکتی ہے, اپ گریڈیشن بھی کر سکتی ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن خاص طور پہ جو کور سبجیکٹس ہوتے ہیں, جس میں آپ بات کریں پاکستان اسٹڈیز کی, جس میں آپ بات کریں اسلامیات کی, یا ایسے سبجیکٹس جو کہ بنیادی طور پہ ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں یا ایک اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوتے ہیں, اس حوالے سے اکیڈمک فریڈم جو ہے وہ بنیادی طور پہ
थोड़ा सा महदूद नोयत का है। सर, सबसे पहले अपना मुख्तसर तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि क्या वाइस चांसलर की जानिब से असातिज़ा की प्रमोशन को ज़ाती तौर पर ज़ाती पसंद और नापसंद के हवाले से रोकना, क्या ये कानूनी है? मेरा नाम जी ज़िया अहमद अवान है। मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ। आज जो ये मीटिंग हुई है और इसमें जो सारे हमें फैक्ट्स पता लगे हैं कि उर्दू कॉलेज जो तीनों ब्रांचेस जो हैं इस्लामाबाद की और 2 कराची की, उसमें जो जुल्म और ज़्यादती और इंसानी हुकूक़ की वायलेशन जो हो रही हैं वो बहुत ही अफसरदा करने वाली हैं। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस तरह तालीम के साथ हाल किया जा रहा है, असातिज़ा के साथ जिस तरह हाल किया जा रहा है, ये मेरा ख़्याल है एक रोल आपके सामने सारा एग्ज़ाम्पल के तौर पे आया है कि असातिज़ा के साथ क्या हो रहा है। अब जब असातिज़ा के साथ ये होगा तो स्टूडेंट के साथ क्या होगा? बिकॉज़ अगर उस्ताद जो है सेटिस्फाई नहीं है और उसको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है और उसको हर वक्त जो है वो एक शख्स जो कि वाइस चांसलर है, जो सपोर्टर होना चाहिए स्टूडेंट्स का और असातिज़ा का, और वो जिस तरह जो है ना मौजूद भी नहीं रहता और उसके जो हमें कारनामे पता लगे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे इस पर नोटिस लेना चाहिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब को, क्योंकि वो चांसलर हैं और जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो भी कराची से हैं। और ये उर्दू यूनिवर्सिटी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, इसको हमें कहीं भी सिर्फ देखें बिल्डिंगों से यूनिवर्सिटी नहीं होती है। यूनिवर्सिटी जो है वो टीचर्स और असातिज़ा से होती है, जिससे तालीम का पता चलता है। तो इससे मुझे लग रहा है कि जो उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तालीम भी सही नहीं मिल रही, और असातिज़ा तो जो जिस तरह की परेशानी है वो मेरे लिए तो बहुत ही तकलीफ़ दे है। ये बताइएगा कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आप एज अ टीचर या प्रोफेसर रह चुके हैं, तो आपके साथ क्या क्या ज़्यादती हुई हैं? जी, मैं 2005 से इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ और 2005 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज से मैं यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना, ये सोचकर आया था कि यहाँ यानी तालीम की खिदमत भी होगी और एक उस्ताद का जो रुतबा है उसकी तौक़ीर और इज़्ज़त भी होगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा यानी मेरा जो तजुर्बा है वो बड़ा तल्ख़ है। 2005 से आज तक मैं मुंतज़िर रहा, मेरा सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ। 2022 और 21 के जो सिलेक्शन बोर्ड हुए उसमें मेरे डोजियर गायब किए गए, मेरी जो रिपोर्ट्स आई वो गायब की गई। 2023 में मेरा सिलेक्शन बोर्ड हुआ और मौजूदा इंतज़ामिया ने मेरा सिलेक्शन बोर्ड भी कैंसिल कर दिया बग़ैर किसी जवाज़ के। उसके बाद अदालत में लोग गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से सुरखरू भी हुए और उनके हक़ में फ़ैसला आया, ज़ाहिर उसमें मैं भी हूँ। मसला ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो हूँ कि जिसने इस यूनिवर्सिटी को बहुत यानी अपना वक्त दिया। मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ PhD कराए, MPhil कराए, जिनकी तादाद 50 से ज़्यादा है। HSC अप्रूव्ड जर्नल्स में मेरे 50 से ज़्यादा आर्टिकल छप चुके हैं। मेरी किताबों पर सदारती अवार्ड मिले, मुझे सदर मुशर्रफ ने अवार्ड दिया, मुझे सदर ज़रदारी ने अवार्ड दिया, मुझे कई वज़राए आज़म और सदूर ने अवार्ड दिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ कि मुझे जो मेरा हक़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। हैरानकुन बात यह है कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में मैं सबसे पहला PhD हूँ जिसने 96 में PhD किया था। मैंने 10 से ज़्यादा अवार्ड लिए जिसमें सदारती अवार्ड है, मेरी किताबों पर अवार्ड मिले, लेकिन मेरे साथ ये इम्तियाजी सलूक मैं नहीं समझता कि क्यों है। ये बताइएगा कि क्या सिविल सोसाइटी ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जैसे बहरानों पर क्या समझती है कि मौसर आवाज़ उठाई है? मैं समझती हूँ आवाज़ उठाई है, लेकिन इतनी मौसर नहीं उठी है कि ईवानों को झंझोड़ दे। ये इतनी आवाज़ जाए कि ईवान सदर ईवान है ना, उस वहाँ पे झंझोड़ आ जाए, वहाँ पे एक ज़लज़ला आ जाए कि फिर क्या हो रहा है। उसमें आवाज़ में उतनी जान नहीं है, अभी उसमें जान डालनी है। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि एक तो सब मुख्तसर तारुफ करवाइएगा सबसे पहले, और सवाल ये है आपसे कि क्या मीडिया, राइट्स ग्रुप और तालीमी माहिरीन ने इस बहरान को वो तवज्जो दी है जिसकी ज़रूरत है? मेरा नाम महनाज रहमान है और मैं इस वक्त यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी के सेनेट की एक रुकन की हैसियत से मौजूद हूँ। वैसे तो मैं सिविल सोसाइटी की ज़ाहिर पुरानी रुकन हूँ। तो मैंने इनके मसाइल शुरू से देखे हैं। असातिज़ा जो हैं वो बहुत ही तकलीफ़ में और परेशानी में, और जो रिटायर्ड असातिज़ा हैं जिनके आप ज़रिए आमदनी भी ख़त्म हो चुका, उनकी पेंशन्स तक नहीं दी जा रही हैं। अब मिडिल क्लास के लोग और उनके घरों के मसले, जैसे अभी एक
खातून ने, बेवा खातून टीचर ने बताया कि उनके कितने ज़्यादा तकलीफ़ का वो शिकार हैं। तो सेनेट के एक रुकन की हैसियत से मेरा मुतालबा यही है कि जो यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं यानी सदर ममलिकत जरदारी साहब, वो फ़ौरन तवज्जो दें और इस यूनिवर्सिटी के मसाइल को हल कराएं, क्योंकि ये जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनकी तरबियत तो यही असातिज़ा ही करेंगे ना। जब आप असातिज़ा को भूखा मारेंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे, उनकी तनख्वाहें नहीं देंगे, तो आगे हमारी नई नस्ल को कैसे तैयार करें। और ये बताइएगा कि अगर रियासती इदारे मौसर वो इक़दामात ना करे तो क्या सिविल सोसाइटी क्या अमली इक़दामात कर सकती है आपके ख़्याल में? बिल्कुल, मेरा नाम उज़्मा नूरानी है। मैं आज यहाँ विमेंस एक्शन फोरम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उन्होंने कहा, मुझे तारफ़ उस तरह कराया, लेकिन मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से शरीक हूँ। मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैं कई बरसों से ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्लेटफॉर्म से और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से काम करती आई हूँ। और मैं समझती हूँ आज जो सज़ा आए हैं सामने और अपनी यानी दर्द बनी, आई थिंक इट वाज वेरी पेनफुल। उनकी जो उन्होंने अपने साथ जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो बयान की उन्होंने, तो मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के मतलब सदर जो चांसलर बने हुए हैं, ही शुड हैंग हिज हेड इन शेम कि हम अपने जो अससा हैं, जो आगे फ्यूचर को जनरेशन को एजुकेशन देते हैं, जिनके स्टूडेंट्स पर सारा फ्यूचर हमारा रेस्ट करता है, उन टीचर्स के साथ, उन प्रोफेसर्स के साथ आप इस कदर बुरा सलूक कर रहे हैं। उनकी तनख्वाहों को रोका जा रहा है, उनके पेंशन्स में आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। और आप ये नहीं देख रहे हैं कि जब वो आपके, जैसे मैंने आज सेनेट की तरफ से उन्होंने कई उनको ख़त भी लिखे हैं चांसलर साहब को, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो इसका मतलब कि आप लोग बिल्कुल बेहिस हैं और आपको कोई परवाह नहीं है कि अवाम में के क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि ये एक वॉर फुटिंग पर काम होना चाहिए। जिस वक्त जो आज उर्दू यूनिवर्सिटी में हो रहा है, यहाँ से शुरुआत होना चाहिए। और सबसे पहले मेरी डिमांड ये होगी कि हम डिमांड करें कि स्टूडेंट्स यूनियंस को बहाल किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपने मसाइल ख़ुद आगे बढ़कर जब प्रोफेसर के सामने जाएंगे तो फिर आगे मामला बढ़ेगा और जब भी मसले हल होंगे जब स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। और सिविल सोसाइटी तो ऑफ कोर्स उनका साथ देगी, आज सब ने प्लेज किया है साथ देंगी, लेकिन जो इस स्ट्रगल को आगे लेना है वो आज जो यहाँ प्रोफेसर्स जमा हुए थे उनके इख्तियार में हैं कि वो किस तरह से रीच आउट करेंगे और इस चीज़ को और आगे कैसे बड़ा इसको मूवमेंट बनाएंगे। सर, चूँकि आप लोगों ने PMA हाउस में एक अवामी समात रखी है, इस अवामी समात का आज का मकसद क्या था और क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जो ये इस बहरान से दो चार है, इससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, जो हमारी आज की अवामी समात का मकसद था, वो मकसद भी यही था कि हम सिविल सोसाइटी को, वकला को, डॉक्टर्स को, राइट्स एक्टिविस्ट को, ट्रेड यूनियनिस्ट को इस बहरान के बारे में बताएं। चूँकि हम समझते हैं कि जब तक तमाम इस शहर के स्टेक होल्डर्स उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जो है चाहे वफाकी वज़ीर तालीम हो या सदर पाकिस्तान जो कि हमारे चांसलर भी है, वो नोटिस नहीं लेंगे। तो आज इस क्राइसिस को हम शहर के लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि आप भी सुने समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जिस तरह तनख्वाहें रोकी जा रही है, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह हर उस्ताद जो कि आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वाइस चांसलर की जानिब से, तो ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है। देखिए, वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड हासिल नहीं कर पा रहे, वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं दे रहे, वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे। तो इस बहरान को ढकने के लिए, इस बहरान को छुपाने के लिए जब हम जैसे असातिज़ा या मुलाजमीन अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उस आवाज़ों को सलब करने के लिए, उन आवाज़ों को कुचलने के लिए वाइस चांसलर साहब अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखिए, हमारी आवाज़ों को बंद करने से मसला हल नहीं होगा, बहरान अपनी जगह खड़ा रहेगा। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि बहरान को ख़त्म किया जाए और बहरान के ख़ात्मे के लिए वाइस चांसलर को, वफाकी वज़ीर तालीम को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी के एक ये जो बहरान जो चल रहा है काफ़ी अरसे से, इंतज़ामी और माली बहरान पर स्टूडेंट के मुस्तकबिल पर इसके तालीमी असरात क्या मुरतब हो रहे हैं? देखें, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में इस वक्त 10,000 से ज़्यादा तालिब इल्म जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं, 2 कराची में है और एक इस्लामाबाद में है। ये यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता 2 साल से ख़ास तौर पर शदीद माली बहरान का शिकार है और इस माली बहरान में जहाँ एक तरफ असातिज़ा को तनख्वाहें, पेंशन, हाउस सीलिंग और उनके बाद रिटायरमेंट के जो बकायाजात हैं वो अदा नहीं हो रहे, तो दूसरी तरफ इसका बरह रास्त
ताल्लुक़ जो है वो तालिब इल्मों से भी है। आप ये देखिए कि ऐसे शोबा जात जो नज़रियाती नौइयत के होते हैं, मिसाल के तौर पर मुताला पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर सिंधी, मिसाल के तौर पर इस्लामियात, ऐसे शोबा जात में दाखिले बंद कर दिए गए हैं क्योंकि तालिब इल्मों की तादाद जो है वो दाखिला लेने के लिए उसमें नहीं आती। जी नाज़रीन, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का ये बहरान सिर्फ एक इदारे का मसला नहीं बल्कि मुल्क के आला तालीम के मुस्तकबिल से जुड़ा एक अहम मसला बनता जा रहा है। असतिज़ा, मुलाज़मीन, वकला और सिविल सोसाइटी का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी के माली और इंतज़ामी मसाइल का हल निकाले ताकि तलबा का तालीमी मुस्तकबिल मज़ीद मुतासिर ना हो सके। अब बेनिश बख्श को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।